Assalamu alaikum ji, this is Ehsan Sheikh. I welcome you all to the 12th episode of Facebook Live Sessions. Today we are really lucky enough to have Mr. Abdul Ahad with us, and he's a business intelligence analyst at Fastned and currently pursuing his master's in mathematical economics at Tilburg University. Sir, welcome on the board, and it's really good to have you. Ahad, so thankful to you कि आपने वक्त निकाला और हमें time दिया. No, thank you so much for having me. It's a wonderful opportunity to discuss जो हम बाहर रह रहे होते हैं और बेसिकली ऐसा होता है ना कि पाकिस्तान में रह के आपको बाहर की दुनिया बड़ी अच्छी लग रही होती है मगर जब आप बाहर आते हैं तो बिल्कुल, आपको एहसास मैं होता इसी है पे बात कि करना चाहूँगा अहद कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि देसी पीपल लिविंग अब्रॉड। तो definitely there are different people who are going to different countries and who have gone and were living their lives, you know, they're studying, they're working, and different things are going on in life. So they have their own experiences. So we want to hear your experience because you're also a Pakistani guy, a Pakistani person who went from here and you were brought up here and then you went over there, then you got settled down and mashallah, you're doing so well over there. So we really want to hear you all because there are many people who are watching this show. There are many students who are really looking forward to you. So how do you explain the whole experience through your lens? Gee, to start off, basically, I was lucky enough to actually be born not in Pakistan. I was born in Saudi Arabia, but I was raised in Pakistan. तो हमेशा से मैं इधर उधर जंपे तो मारता रहता था सऊदी अरब हर साल जाना पड़ता था अकामा रिन्यूअल के लिए फिर वापस पाकिस्तान आना पड़ता था एंड देन Right. आई वाज आल्सो फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अ स्कॉलरशिप फॉर माय बैचलर्स तो मैं टर्की गया था अपना बैचलर्स करने के लिए फिर मैं वापस पाकिस्तान आया एंड देन अब मैं वापस मास्टर्स करने जॉब करने बाहर निकला हूँ तो आई हैड अ वेरी डाइवर्स एक्सपीरियंस इन लिविंग डिफरेंट कंट्रीज बिसाइड्स पाकिस्तान एंड वन थिंग दैट आई लर्नड जो मुझे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आती है कि जो हमारा कल्चर है जो Mm-hmm. हमारी अपब्रिंगिंग है जो हमारे तौर तरीके हैं उसमें खामियां तो बहुत हैं मगर उनकी जो जो खूबियां हैं ना मैं उनको जेम्स कहता हूँ जेम्स वो इतने ज़रूरी हैं कि आई फील लाइक इफ़ आई वुड वांट टू सेटल हियर इन हॉलैंड आई वुड वांट माय चिल्ड्रन टू learn those first learn those etiquettes from Pakistan and then be raised in this country because I'm not being conservative in that sense. मैं काफ़ी liberal आदमी हूँ in the sense that I know I've seen a lot and everything, but there are certain aspects of family, certain aspects of respect that we have in our culture जो आपको कहीं और नहीं मिलती. Given that I've lived in 3 countries besides Pakistan, I can safely say कि at least जहाँ तक मैंने देखा है मुझे तो नज़र नहीं आया. It's a very different culture, it's a very different experience, and in my like whole that I've been through in life, it's that पाकिस्तान पाकिस्तान है राइट हम हमेशा बोलते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान है कराची कराची है एंड इट होल्ड्स ट्रू इन माय ओपिनियन इट डज होल्ड ट्रू बट मोर ओवर बात सारी ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान अच्छा है मुझे पाकिस्तान चाहिए ये वो हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो हमें हमें एक्सपोजर चाहिए होता है तो वो एक्सपोजर जो मुझे यहाँ पे मिला है इट्स बिन वंडरफुल राइट आई स्टडीड इन टर्की फॉर 4 years tried to learn a foreign language इतना मज़ा नहीं आया बिकॉज मैं शौकीन नहीं हूँ नई लैंग्वेजेस सीखने का आप शायद आपने इंटरव्यू भी लिया था मेरे एक दोस्त का अहमद का राइट जी जी बिल्कुल बहुत वो अच्छी बात मेरे कही साथ था तुमने. वो मेरे साथ टर्की में He था was और so आपने passionate उसको about languages. अब Ahad, he देखे was so आप passionate. I was really loving that part. कि सोचने की oh बात है my हम God. दोनों ने 4 साल गुजारे हम दोनों ने 4 साल गुजारे टर्की में अच्छा. ठीक है उसने पूरी जबान सीख ली मैंने जबान And you बिल्कुल were भी नहीं also in Turkey. He सीखी was also in Turkey. You जी, जी, guys जी. were in Turkey. We Yeah. were in Right. batches together. We were back in the we were together since we were young. Right. तो Right. bachelors में उसने experience उठाया. He learned. We went back to Pakistan together. We both came out of Pakistan again. वो स्पेन गया, मैं हॉलैंड गया. उसने स्पेनिश भी सीख ली. और मैंने अभी तक यहाँ Hmm. पे डच भी नहीं सीखी, right? So it's like you try to absorb what you want to absorb, and he Yeah. loves languages, right? So that was for him. I love the concept of independence. Hmm. That's one of the biggest problems I have with our Pakistani culture, the concept of independence, right? आज़ादी जो होती है ना आपका घर अपना होता है या फिर आप काम अपना होता है पाकिस्तान में फैमिलीज बहुत क्लोज होती है एक दूसरे से राइट तो उसकी वजह से काफ़ी इख्तलाफात आती हैं मेरे ख्याल से ऐसे बेहतर तरीके से बोल सकते हैं कि आपको पता नहीं जो बंदा यहाँ रहता है ना फैमिली के साथ वो कहता है मुझे इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए जो बंदा इंडिपेंडेंट रहता है ना वो कहता है मुझे फैमिली लाइफ चाहिए हमारे हमारा असल में मसला ये होता है कि we are not happy in any of the situation. When we are living with a family, we are not happy with that. When we are living individually, we Correct. are not happy with that. बिल्कुल यही है That's a problem.
यही मसला है। जब ओके यहाँ पे अब अगर आप रहे ना, मैं यहाँ पे रहा भी 1 साल माशाल्लाह से मुझे हो गया है, और मैं जब अपने कॉलीग से बात करता हूँ ना ऑफिस में, उनको मैं बताता हूँ कि हमारे घर में फैमिली लाइफ कैसी होती है। जो यंग कॉलीग्स होते हैं ना वो तो हंसते हैं, कहते हैं ये क्या मतलब, ये कोई जिंदगी है यार, आज़ादी की तो गेम होती है। मगर जो बड़े कॉलीग्स हैं ना, जो 35-40 के हो जाते हैं, वो कहते हैं यार आपकी कितनी अच्छी जिंदगी है। मतलब हम सोचते हैं हमारे माँ बाप अभी रिटायरमेंट होम में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, हम उनसे मिलते नहीं है, साल में 1 बार मिलते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो भी हमें छोड़ के जाने वाले हैं, right? तो आप जितना बड़े होते हो ना, तो आपको उतना उतनी अहमियत आपकी फैमिली के लिए बढ़ना शुरू हो जाती है। मगर आप जितने यंग होते हो ना, तो उतनी आपको आज़ादी चाहिए होती है। वैसे या मेरे अम्मी अबू ने मुझे बहुत अच्छा ये मेरे साथ गेम खेली, उन्होंने उन्होंने मुझे 18 साल की उम्र में जाने दिया बाहर। उन्होंने कहा जाओ राइट जी लो अपनी आज़ादी, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। जब मैं वापस आया ना, तो मेरा प्यार मेरे खानदान के लिए बढ़ गया, क्योंकि उनको मैंने 4 साल से देखा नहीं था। या तो फिर मैं हर चीज़ खुशी-खुशी कर रहा था। जितनी गाली अम्मी देती थी, अबू देते थे, सुनता था बैठ के। मैं कहता था खैर है, आप लोग से 4 साल से नहीं मिला, मोहब्बत बहुत है। फिर मुझे इन्होंने वापस बाहर भेज दिया। इन्होंने कहा वापस जाओ भाई। तो हमें अच्छा लगता था, हमारी गालियाँ सुनते रहो मज़े से, मोहब्बत मोहब्बत से। अब मुझे बोलते हैं हम तुम्हारे पास आएँगे 2 महीने, तुम हमारे पास आओगे 2 महीने, और उसमें हम जो चाहे कर सकते हो, उसमें हमें गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि तुम हमें देखते नहीं हो इतना। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, राइट? तो या ये पूरी प्लानिंग है, ये पूरी प्लानिंग से उन्होंने मेरे साथ खेला है, जबकि मुझे लगता है कि मेरी इंडिपेंडेंस थी ये मुझे लगता है मैंने ये पूरा प्लान बनाया, मगर नहीं। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। yeah. So Ahad, how it really got into your mind कि जी मैंने मुझे बाहर जाना है, आई हैव टू गो अब्रॉड, आई हैव टू स्टडी ओवर देयर, और कैसे आपने ये मतलब आया शुरू, मतलब आपने खुद कहा कि 18 साल के जब आप थे, सो योर पेरेंट्स टोल्ड यू टू गो बिकॉज दे वांटेड यू टू स्टडी, दे वांटेड यू टू हैव हायर स्टडीज, एंड व्हाट यू वर, आई मस्ट आस्क कि व्हाट यू वर इंक्लाइंड एट, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में था, किस फील्ड में था, ये भी बताएं सुनने वालों को। जी, दरअसल ये था कि मेरे घर वालों को बचपन से पता चल गया था कि मैं टिकने वाला नहीं हूँ, राइट? तो इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया, क्योंकि मैं टिकने वाला नहीं था। मैं बचपन से कहता था कि मुझे अलग रहना है, मुझे जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। मैं चाह रहा हूँ आप लोग मेरे गली में मेरे बाजू वाला घर लेना है। मगर मेरा घर अलग होगा, मेरा किचन अलग होगा। बचपन से, सिंस आई वाज आई थिंक 10 इयर्स अच्छा। ओल्ड, मैं ये बोलता आता था, क्योंकि एक्सपीरियंसेस शेप यू, एंड आई हैव लिव्ड इन अ वेरी वेरी जॉइंट फैमिली, राइट? और उसमें मुझे ना पॉजिटिव्स इतने ज्यादा नजर नहीं आते थे, इतने नेगेटिव्स नजर आते थे। तो मैं कहता था कि अच्छा। मैं आपसे मोहब्बत इतनी करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा दूर रहें, ताकि मोहब्बत बढ़ सके। तो मेरे घर वालों हाँ। ने बोला आइडिया अच्छा है। तो फिर जब मैं 10 साल का था, मैं ऐसी बातें करता था, मैं चाइना जाना है मुझे, मुझे चाइना का बहुत शौक है, उसको मैं चाइना का कल्चर का बहुत शौक था। वेस्ट के पीछे तो हम सब पागल होते थे बचपन से, मतलब अंग्रेजी मूवीज देखते हैं, अंग्रेजी ड्रामे देखते हैं, अंग्रेजी कपड़े पहनते हैं, तो अंग्रेजों के पास जाने का तो मजा ही अपना होता था हमारे पास, राइट? हम्म। तो मेरा इनिशियल आइडिया ही कनाडा जाने का था। मेरा कनाडा जाने का प्लान था, और उसमें प्लान से ये था, अब्बू ने बोला था कनाडा बहुत महंगा होगा, तुम कैसे मैनेज करोगे? मैंने पूरा प्लान निकाल के दे दिया। जैसे आपको अगर पता होगा, ऑस्ट्रेलिया लोग जाते हैं, कनाडा लोग जाते हैं, वो उनकी और जॉब्स इतनी इतनी वो होती हैं, हाई होती हैं इन इनकम, कि यू कैन बिल्कुल हाँ। सर्वाइव बाय योरसेल्फ, राइट? एक्सेप्ट फॉर ट्यूशन। तो मैं इससे इनिशियल आइडिया कनाडा जाने का था। बस मैंने कहा कि मैं वहाँ जाके खुद कमा लूंगा, अब्बू देखो ये मैंने पूरी इनकम पूरी स्टेटमेंट बना लिया आपके लिए, कैसे कैसे करूंगा हर चीज़। मुझे वीज़ा नहीं मिला। जब मुझे वीज़ा नहीं मिला ना, तो ये अहमद जो मेरा दोस्त था ना, इसका हो गया था टर्की में फॉर ऑन अ अच्छा। स्कॉलरशिप। अब अहमद का स्कॉलरशिप हो गया, तो अहमद ने मुझे बताया। मैंने कहा मैं तो कनाडा जा रहा हूँ, टर्की कौन जाएगा, मैं तो कनाडा जा रहा हूँ। मगर मेरा हम्म। कनाडा रिजेक्ट हो गया। तो मेरा कनाडा रिजेक्ट हुआ ना, तो मैंने टर्की भी अप्लाई कर लिया टू बी सेफ। जब मैं हम्म। टर्की अप्लाई किया, मेरा टर्की में हो गया। टर्की में ऐसे ही चले गया मैथ पढ़ने के लिए। बस अब मुझे निकलना था बाय राइट। मैं कनाडा जा रहा था एक्चुअल साइंसेस करने के लिए, क्योंकि वो नई फील्ड आई थी उस वक्त। आई थिंक ये 2012-13 की बात है, राइट? उस वक्त नई अप एंड कमिंग फील्ड एक्चुअल साइंसेस थी, स्टैटिस्टिक्स एंड अच्छा। प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा मुझे ये करना है, मुझे मैथ का बहुत शौक है। तो मैं उस तरह भागा था, मुझसे नहीं हुआ। तो मैंने बोला मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ टर्की में, और मैं मैथ की डिग्री करूंगा, और मैं देख लूंगा कि आगे क्या करना है जिंदगी में। उस आप वक्त सिर्फ मैथ्स बाहर की निकल बात करें ना, मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स अच्छा मैथमेटिक्स राइट, ठीक है। जी। तो मैं मैथमेटिक्स के लिए गया, वहाँ पे मैंने 1-1.5 साल मैथमेटिक्स में गुजारा। मेरा दोस्त एक और था सुहास, वो मेरे साथ मैथमेटिक्स में था। और एंड में मैंने हार मान ली मैथमेटिक्स में। मैंने कहा ये नहीं हो रहा, इट्स टू मच प्योर इन्फॉर्मेशन, मुझे इसमें मजा नहीं आता, देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ व्हाट आई एम लर्निंग। तो फिर मैंने इससे वहाँ से शिफ्ट मारी इकोनॉमिक्स में, बिकॉज मैं कहीं और भी जा सकता था, मैं मैनेजमेंट में जा सकता था। मगर मैंने कहा मुझे मैथ पसंद है, बस मुझे मैथ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी चाहिए सिवाय थियोरेटिकल एप्लीकेशंस के। तो उसकी सही है। वजह से मैंने इकोनॉमिक्स चूज किया, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड, कि आपके पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होती है जिंदगी की, एंड आपके पास बहुत सारे नंबर्स एंड कैलकुलेशंस एंड थ्योरी भी बहुत होती है। तो इट्स अ रियली वंडरफुल मिक्स। सही। तो मैं वहाँ पे गया, मैं इकोनॉमिक्स पे, मैं इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हुआ। फिर मैं वापस आ गया 1-2 साल के लिए। पाकिस्तान में मज़ा आया मुझे बहुत। माशाल्लाह से ICM में जॉब लग गई थी, एंड आई वाज गुड एज अ कमर्शियल ट्रेनिंग ऑफिसर। बट फिर इट स्टिल दैट फीलिंग इनसाइड जो टर्की में थी ना, कि वो लेवल ऑफ फ्रीडम, वो लेवल ऑफ लिबरलिज्म, वो लेवल ऑफ
आप जैसे बोलो कि एक्सपीरियंसेस जो आपको मिलते थे, मुझे एक्सपीरियंसेस का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग का शौक नहीं है, एक्सपीरियंसेस का शौक है। ये लोग कंफ्यूज अच्छा। कर रहे थे, मुझे कहते हैं ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। हर बंदा मुझे कहता है कि तुमने इतनी इतनी कंट्रीज ट्रैवल की है, मैंने कहा शायद इतनी कंट्रीज ट्रैवल की इसी वजह से मुझे ट्रैवलिंग का शौक नहीं है। राइट, मैं कहता हूँ एक्सपीरियंसेस, और एक्सपीरियंसेस होते हैं बस हर बार कुछ नया करना। एंड हाँ। पाकिस्तान में वही जॉब, वही कुछ कर करके बंदा एक वक्त पे आके बोला था कि यू नो व्हाट, मुझे कुछ चेंज चाहिए लाइफ में। तब मैंने सोचा बाहर निकलते हैं, मास्टर्स का प्लान किया। जब मैं यहाँ पहुंचा अपने मास्टर्स करने के लिए, तो मुझे ऑलरेडी जॉब मिल गई थी एक। अच्छा। तो मैंने कहा मैं जॉब कर लेता हूँ, मास्टर्स में 6 महीने बाद कर लूँगा। तो जब मैं जॉब स्टार्ट की, वो भी बहुत बड़ा कल्चर शॉक था मेरे लिए, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तानी वर्क स्टाइल, वर्क लाइफ और बाहर की वर्क लाइफ में ज़मीन आसमान क्वाइट का फ़र्क, डिफरेंट या। quite different, right? So Pakistan mein it's a very culture of in my experience there was a lot of micromanagement involved. There was a lot of hierarchy involved, and there was just in general it was a very closed workspace. जबकि यहाँ पे अगर आप आओ तो it's like आप अपना काम कर रहे हो। आपने जैसे मुझे बताया था पहले कि अपना काम कर रहे हो, आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स लाते हो, आपको कोई बोलेगा नहीं आके कि आपको क्या करना है। लोग आपसे साल के एंड में ये पूछते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू में कि ये नहीं कि मैंने जो तुमसे मांगा तुमने किया कि नहीं किया, वो कहते हैं तुमने क्या किया, क्या मुझे बताओ। अगर मुझे लगता है तुमने काफ़ी किया तो ठीक है, अगर मुझे लगता है तुमने काफ़ी नहीं किया तो ऑफ है। एंड दैट इज हाउ परफॉर्मेंस रिव्यूज आर कैलकुलेटेड। तो या। it's just wonderful how the different the mindset is, right? And you get to learn from all of that. अच्छा, राइट। आहद, मैं एक बात यहाँ पूछना चाहूँगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दो, कि you were interested in maths, you loved it, you liked it. Most of the people are away from maths, they're not much interested. या हो सकता है हो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग नहीं है, but at least if I'm talking about myself, I was not inclined towards mathematics. So you like numbers, you loved numbers, मतलब since the ये beginning आपको, ये या एक ये दोस्त था होता है ना मेरा। कि हम जब पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे तो हमें पता लग जाता है यार, आई एम नॉट गुड एट थियरी, आई एम गुड एट Yeah, नंबर्स, सो आई वुड गो yeah. टुवर्ड्स दैट। तो ऐसा या हुआ था? एग्जैक्टली एग्जैक्टली जैसा आपने बोला ना कि मैं और मेरे दोस्त सुहास जो थे ना, हम दोनों मैथ में जब गए थे ना, तो हम इसी उम्मीद से गए थे कि नंबर्स पसंद है, मैथ बहुत अच्छा होगा। मगर हमने पहले साल में ये रियलाइज किया कि मैथ में नंबर्स नहीं होते। मैथ में नंबर्स जगह नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स आ जाते हैं। तो ये जब आप हाँ, जितना ऊपर जाते रहते हैं ना, उतने कम नंबर्स हो जाते हैं, उतने ज्यादा अल्फाबेट्स जाते हैं मैथ में। तो उसने मुझे कहा नंबर्स अगर पसंद है अकाउंटिंग में जाओ, भाई अकाउंटिंग में हाँ, बहुत नंबर्स मिलेंगे, मजा है, कैलकुलेशंस होंगी। सही, बिल्कुल सही। मगर ये मैथ में लॉजिक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। मुझे मेरा भी पहली इंक्लिनेशन यही थी कि मुझे मैथ की तरफ इसलिए जाना था, कुछ मैंने कहा यार एसएटीज में मैथ में अच्छे नंबर आए हैं, एग्जाम्स में ओ लेवल ए लेवल से मैथ में अच्छे नंबर आ रहे हैं, मुझे लगता है मैं मैथ के लिए बना हूँ। तो जब मैं वहाँ गया था, मैं मैथ में मैंने इन्वॉल्व की, इन्जॉय किया, मजा आया, बट मैंने बोला इट्स टू प्रैक्टिकल प्योर। इम्प्लीमेंट वाज नॉट फाउंड, आपने ये हाँ, कहा ना? इट्स नॉट टू मच प्योर। मगर जब मुझे बहुत मजा आता है, मैं फिलोसफी का बहुत शौकीन हूँ, और फिलोसफी की सबसे पहली जो बेसिस होती है ना, वो लॉजिक होती है, और मैथमेटिक्स की पूरी बेसिस बाय लॉजिक है। तो उसमें बहुत मजा आता है बाय लॉजिक के बारे में सोचना। तो मैं हमेशा से अपने दोस्त सुहास को अपने साथ रखता ही इसलिए हूँ कि उसको मैथ आती थी। एक और मेरा दोस्त है जीशान कबाड़ी, फिर आप वो भी मैथ फिलोसफी में की ग्रेजुएट। तरफ क्यों नहीं गए आहद? आप व्हाई डिडंट यू मूव टुवर्ड्स फिलोसफी, दैट? दरअसल आप समझ सकते हैं, पाकिस्तानी हाउस होल्ड है, पाकिस्तान में बड़े हुए हैं, फिलोसफी की डिग्री तो मेरे ख्याल से काम ही नहीं आनी, राइट? तो हाँ, ये भी मेरे है। इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट। एक यहाँ दोस्त है आपको रहते हुए डिफरेंट एस्पेक्ट से सोचना पड़ता है, बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट। फिलोसफी की, जैसे मेरा एक दोस्त था दानियल कुडवावी, वो अभी जर्मनी में फिलोसफी में मास्टर्स कर रहा है, बट उसने अच्छा, बैचलर्स आईबीए से ही किया था, बीबीए का, अच्छा, राइट? राइट। वो बैचलर्स इधर से ही करके निकला। उसके बाद उसने मास्टर्स के लिए जब बाहर गया, उसने कहा अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने बैचलर्स कर लिया, घर वालों की रिक्वायरमेंट पूरी। तो मेरी भी घर वालों की यही रिक्वायरमेंट थी कि बैचलर्स करो कोई ढंग का, उसके बाद मास्टर्स देख लेना जो मर्जी हो। जब मैं मास्टर्स का भी मैंने सोचा, जैसे मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में चले गया, much more difficult field, much more theory involved. But it's because I was trying to reignite my passion of my math passion. But it's been still difficult because again it's too much theory, not a lot of अच्छा, numbers. आहद, यू केम टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स, सो वर यू लाइक, डिड यू लाइक इट? मतलब इकोनॉमिक्स आपको पसंद थी कि No, यू no, no, केम no. टुवर्ड्स इट? या नहीं 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 बिकॉज मैं like, क्योंकि मैं अपने आप से भी थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों से, उनको ये होता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो भी थोड़ी मुश्किल लगना शुरू हो जाती है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई आल्सो स्टडीड दैट कोर्स। तो मुझे थोड़ी एक, जैसे कहते हैं ना, बड़ा एक सीधा सा वो एक कोर्स है, इवन तो है नहीं, उसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना एक उसमें मार्केटिंग वाला एक्सपेक्ट नहीं है, उसमें मिर्च मसाला नहीं है, आई वुड से excitement लाइक। नहीं है, अगर मैं exactly, एक स्टूडेंट की जबान में बात करूँ तो मिर्च मसाला नहीं है उसमें, वो नहीं है कि जी वो कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह इस तरीके की चीजें थोड़ी सी कम मुझे लगी, थोड़ी सादा सादा एक मिजाज जिसे कह लेना, आप कोर्स कह सकते हैं उसको। सो वर यू इंटरेस्टेड इनटू दैट और यू हैड टू कम टुवर्ड्स इट? नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही क्या है कि
मैथ वाज एक्साइटिंग अगर आप मैथ के पेपर नहीं दे रहे, मतलब मैथ सिर्फ सीखना बहुत मजेदार है। मैं मैथ अलग से बैठ के श्वास मैथ कर रहा था, तो वो हमारे पास आके ऐसी बातें करता था कि 1 = 0 मैं प्रूव कर सकता हूँ, फिर वो प्रूव करके दिखाता था कि 1 = 0 कैसे यूजिंग मैथमेटिकल लॉजिक, और मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगता था, मगर एग्जाम में ये सब अच्छा नहीं लगता, राइट। तो इससे मैं इकोनॉमिक्स की तरफ चले गया। मैंने कहा मुझे मैथ अभी भी पसंद है, मुझे मैथ तो करनी है, मगर इकोनॉमिक इन एन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इट्स मच इजियर। उसमें थोड़ी रिलेटिवली थ्योरी है जो आप रट्टा मार के पास कर सकते हो, और उसमें मैथ भी अच्छी खासी है जो आपको एक्साइटिंग भी लगेगी। तो इकोनॉमिक्स मैंने जब लिया था, तो मेरा बैचलर्स जब इकोनॉमिक्स में था, मैंने ओ लेवल ए लेवल कभी भी जिंदगी में इकोनॉमिक्स नहीं लिया। मैंने ओ लेवल में इंजीनियरिंग की थी, ए लेवल में इंजीनियरिंग की थी, और मैंने बैचलर्स मैथ में स्टार्ट किया था, मैं इकोनॉमिक्स में शिफ्ट हो गया था, जिससे मुझे अहद ये भी बहुत बड़ा एक डिसीजन था, इट्स अ वेरी मैं इधर उधर strong घूमता रहता था बस देखने के लिए कि मुझे लेकिन you पसंद क्या आ proved it रहा ना, है। you did it. The point is कि you got successful in that is the most important thing. You Definitely, managed it. mashallah. Yeah. But it's मतलब also about the most fact of the that people do economic. not manage, you know. एक most of the people do not manage। होता ये है कि आपने जब engineering के background से पढ़ा या आपने economics पढ़ी नहीं, तो normally ऐसा होता है बंदा बिल्कुल वो हो जाता है कि यार मैंने तो मैथ्स भी नहीं पढ़ी, अब मैं इकोनॉमिक्स में पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन somehow you manage very well। Yeah, mashallah say I tried, but I think it's also the fact that in universities everything starts from basics. जो A level math, A level economics थी, वही यूनिवर्सिटी में मिलती है आपको, in at least in the first year. First year की basis बहुत similar होती है, right? So if you skip on economics and you go there, it's still manageable. I am a firm believer, मैं हमेशा से I think ये मैं podcast भी बहुत सुनता था, उसमें भी ये बात होती रहती है generally के engineering in your high school, like pre-high school में आप अगर engineering लें, is the best start to your life, because if you are exposed to chemistry, physics, mathematics at a young age, आप फिर आगे जाके थ्योरी भी कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप स्टेटिस्टिक्स भी कर सकते हैं, और डिफिकल्ट फील्ड में भी आप जा सकते हैं अगर आपको जाना हो। सही। पॉइंट इज इट रियली मेक्स यू एन ऑल राउंडर, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक हेल्प्ड मी इन दैट पर्टिकुलर सेंस। राइट। अहद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये बताइए कि हाउ व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड व्हेन यू अराइव्ड ओवर देयर फ्रॉम टर्की, या वहाँ आपने जैसे पढ़ना शुरू किया और आपने इस कोर्स के अंदर आप आ गए, और डेफिनेटली एक बंदा जो पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में रहा और फिर यहाँ फ़ौरन आया, तो व्हाट वर द चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ द कोर्स, इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, environment and everything, all together, culture, everything got changed, you were away from family, बंदा डिप्रेस्ड भी होता है, 100 चीज़ें होती हैं दिमाग में चल रही होती हैं, ठीक है, you were the kind of a guy जिसको मैं कहता हूँ उर्दू में खास कि खलवत पसंद थी, खलवती थे आप, ठीक है जी, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि नहीं यार लोग भी चाहिए, फैमिली भी ज़रूरी है, तो बताएं पूरा कि कैसा रहा वो, Yes, चैलेंजेस definitely. क्या I थे? think it's आप बिल्कुल on point है इस बात पे कि when you move abroad, even if you want to say that आप बहुत independent है, आप बहुत आज़ाद पसंद है, आज़ादी पसंद है, मगर आपका घर जब खाली खाली होता है ना, तो आपको एहसास होता है कि यार मुझे वो रौनक चाहिए, मुझे वो एग्जैक्टली। कोई वो नहीं है घर में, वो हसल बसल नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे आया था, at first it was a bit lonely, but mashallah से I had friends here already. मेरे दोस्त यहाँ पे थे जो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे, दूसरे मुल्कों के भी थे, तो मुझे क्योंकि हम लोग टर्की में सब साथ होते थे, तो अच्छे खासे लोग मुझे वहाँ से भी मिले थे, तो मैं उनके साथ इन चेक होता था, तो वो लोग ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। बट अदर देन दैट, मैंने पहली चीज़ जो मैंने की थी ना यहाँ के, वो मैंने यहाँ के पाकिस्तानी सोसाइटी ढूंढी थी। आते ही मैंने उतरा था, मैंने कहा था मुझे पाकिस्तानी लोग चाहिए यहाँ पे, तो मुझे यहाँ मिले थे पाकिस्तानी इन नेदरलैंड्स, जो यहाँ की सेकंड जनरेशन है, तो जिनके राइट। वालिदैन यहाँ पे आ गए थे 1980 1990 में, ये वो जनरेशन है। और जब मैं यहाँ गया ना, तो ये जनरेशन मुझे इतनी डिफरेंट लगी कि मैं वहाँ पाकिस्तानी नहीं महसूस कर रहा था। अब आप सोचें, कल्चरल शॉक ऐसा मेरा कि एक तो मैं यहाँ पे आया गोरों के मुल्क में, और मैं यहाँ पे अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, फिर मैं अपने पाकिस्तानियों के अंदर किया, उधर मैं गोरा महसूस कर रहा था, क्योंकि उनका कल्चर इतना वो था, इतना स्ट्रांग था, क्योंकि उन लोग 1990 वाले पाकिस्तानी की मेंटालिटी से उनके वालिदैन यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो मुझे, ये मेरा ओपिनियन है, मगर ये ज़रूरी नहीं है, मगर उनके वो लोग को उनके वालिदैन ने उनको यही सिखाया है। जब 1990 से लेकर 2010 तक पाकिस्तान जैसा चेंज हुआ है, उन्होंने वो देखा ही नहीं, वो लोग वही पाकिस्तानी इमेज लेके चल रहे थे, बिल्कुल। और उन्हें बच्चों को भी उन्होंने वही सिखाया है। तो अभी हाँ उनके जी। बच्चे जो हैं इतने डिफरेंट है फ्रॉम, मतलब आप कराची अगर जाओ, उनके बच्चे कराची जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोलेंगे ये कराची क्या है, ये कराची नहीं है, दिस इज नॉट पाकिस्तान, उनके लिए डिफरेंट हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कल्चर शॉक। जब आप कहीं शिफ्ट होते हो ना, तो आप अपनी आइडेंटिटी बचाने के चक्कर में सबसे पहली गलती ये करते हो कि आप इंटीग्रेट नहीं करते, एंड आई थिंक दैट्स अ मिस्टेक। ये वो मेरा दोस्त अहमद जो है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वो कहीं पे भी जाता है वो इंटीग्रेट करता है, जबान सीखता है, कल्चर सीखता है, बिकॉज दैट्स जरूरी। दूसरा बंदा आपसे बात ही नहीं करेगा
अगर वो आपसे कंफर्टेबल नहीं होगा, अगर आप उसको दिखाओगे कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, मैं यहाँ पे हाँ आऊँ अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, सब मेरे तौर तरीके से होना चाहिए, मुझे कल्चर शॉक हो रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। यू नीड हाँ टू बी आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मेरे जो दोस्त हैं मुझे वो लैंग्वेज सिखा रहे हैं, मेरे दोस्त मुझे कल्चर सिखा रहे हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो फनी भी हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी पर से हो, मगर मेरे मेरे मेरा अपनी आदत है। जैसे अब हम छींक मारते हैं तो हम छींक थोड़ी जोर से मारते हैं, और हम छींक मारते हैं तो हम नीचे की तरफ ऐसे इशारा करके मार देते हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आपने माना तो छींक अपने हाथ में रख के मारनी है आपने, और कोरोना के बाद तो और बुरा हो गया। या देयर आर सही। डिफरेंट थिंग्स या छोटी छोटी आदतें भी मुझे ना पॉइंट आउट करते थे लोग कि देखो ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं चलेगा ये, और वो मुझसे सीखने को मिलता था। मैं कह रहा था सही कर रहे हो, मुझे सीखना जरूरी है, बिकॉज आई नीड टू इंटीग्रेट इनटू द सिस्टम इफ आई वांट टू राइट बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, राइट। right right so how did you manage your working and your studies over there? So first question is कि did you work over there while studying? If yes, so how did you manage? और अगर even if you didn't work, तो how did you balance your life? क्योंकि यूनिवर्सिटी भी है, पढ़ाई भी है, प्रोजेक्ट्स भी हैं, सब कुछ चल रहा है, तो क्या एक नॉर्मल रूटीन होती थी आपकी? Actually I started working full time first, and then 6 महीने बाद, like in January अभी in this year I started my masters. राइट तो राइट उस वक्त मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और मास्टर्स कर रहा था। इट वाज अ बिट डिफिकल्ट, क्लासेस में जाना इतना हो नहीं रहा था, लोगों से नोट्स वोट्स मांगनी पड़ती थी। थैंकफुली 2 कोर्सेज तो कम्प्लीटली ऑनलाइन थे, उनकी क्लासेस थी, तो मैं वीकेंड पे बैठ के उनकी क्लासेस सुन लेता था, नोट्स बना लेता था। बट मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो थी वो, मतलब इट्स बैड टू से, बट ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन आया था ना, इससे मुझे बहुत फायदा हो गया था, क्योंकि घर से बैठ के काम भी हो रहा था, फिर घर से बैठ के पढ़ाई भी हो रही थी। हाँ जी तो मजे से जाहिर है काम भी कर रहा था, रिकॉर्डिंग्स भी आना शुरू हो गई थी। टीचर्स बोल रहे थे कि अब हम तो रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए, और जब आपको देखना अपनी टाइम पे देख लेना। तो आराम से काम करने के बाद 5 बजे मैं बैठ जाता था, 2 घंटे अपनी वीडियोस देखता था और यूनिवर्सिटी की काम वाम करता था। तो मैंने वो यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय नहीं की जो मैंने टर्की में की है। यहाँ पे वो अच्छा नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे जॉब साथ थी। मास्टर्स में आपने एंजॉय नहीं की यूनिवर्सिटी मास्टर्स लाइफ में वो जैसे आपने यूनिवर्सिटी टर्की में लाइफ नहीं मिली जी, वो हाँ यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं मिली, बिकॉज मैं ज़्यादा इतना था नहीं। 3 दिन ऑफिस हम्म, में होता था, 2 दिन मुझे मिलते थे जाने के लिए। उसमें भी बंदा जल्दी जल्दी भागता है, क्लासेस अटेंड करता है और थक जाता है। तो उसमें मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं मिली क्योंकि आई थिंक जो बार मेरा टर्की का सेट हुआ था ना, वो डिफरेंट था। आप अगर आप मुझे पता नहीं, अहमद अहमद ने कोई कहानी आपको बताई हो, वो जो टर्की की जो हमारी लाइफ थी, वो कम्प्लीट डिफरेंट। लड़के सारे पाकिस्तानी वहाँ गए थे। अगर हमने इंटीग्रेट इसलिए नहीं किया था, बिकॉज हम लोग उस यूनिवर्सिटी में हम 350 पाकिस्तानी थे, अच्छा काफी ज्यादा पाकिस्तानी थे हम सब। छोटा कराची बना लिया था हमने, यहाँ पे छोटा पाकिस्तान बना लिया था। तो उसमें बहुत मजा आता था, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान का कल्चर ले आए ना यहाँ पे, और आपके पास बाकी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, तो वो तो आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो हो जाता है। इट्स अ तो वेरी कम्युनिटी वेरी बन जाती इट्स है अ और वेरी मजा वो, आता हाँ, है इट्स अ वेरी प्रिविलेज थिंग टू से कि यार मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। मगर अगर आप वो मिक्स बना लें तो आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो। तो मैं यही मैं अपनी लाइफ में चाह रहा हूँ कि मैं वो मिक्स बना सकूँ, कि मैं यहाँ पे वो कल्चर ले आऊँ, जो वैल्यूज ले आऊँ जो मुझे पसंद है, एंड बाकी जो यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट है उनको इंटीग्रेट कर लिया जाए। राइट अच्छा how did you see the difference मतलब if I compare universities of Pakistan if I with the universities of other countries so what was the main difference that you think you highlighted yeah this is what is something which should be there in Pakistan too yeah, this is what is something that they are doing at their best what was that अच्छा, ये फॉर दैट आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज ऑफ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज टू हम्म एक्चुअली कंपेयर, बिकॉज मैंने पाकिस्तान में पढ़ा ही नहीं। बट मैं सही पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम में मैंने पढ़ा है, उससे मैंने हम्म थोड़ा सा सीखा था। बट जनरली यहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे, क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत वैल्यू किया जाता है। तो हम्म जैसे जब मैं एग्जाम दे रहा हूँ ना, तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा रहा कि राइट डाउन द फॉर्मूला, राइट डाउन दिस, राइट डाउन दैट, के याद करके डालो, नहीं। वो कहते हैं कि इंटरप्रेट, डिस्कस, एक्सप्लेन। ये सारे सवालात होते हैं कि हम आपको आंसर बता रहे हैं, हम आपको हर चीज़ दे रहे हैं, ये लो सामने आपके ग्राफ है, हमें समझाओ, अपनी अपनी थिंकिंग समझाओ, अपनी इंट्यूशन समझाओ इसके पीछे। एंड दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई गॉट इन ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, जहाँ पे रट्टा कल्चर रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता था कि यार आपने हम्म बस रट्टा मार लेना है, आपको पता है ये फॉर्मूला है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ऐसे करना है। तो उसमें आई हैव सीन अ बिग डिफरेंस। But other than that, I can't speak much more about higher education, such as at Indus or such as any other university के वहाँ पे उनकी उनका level क्या है, because I have no idea about that. Right. Acha, Ahad, about what about if I come towards this fact, कि after studying, after completing your graduation, after you graduated, you started off your job, जहाँ इस वक्त आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस है आपका वर्किंग एनवायरनमेंट के हिसाब से या is there any kind of a problem that you see या you're happy with that या you're happy with everything the environment या कोई डिफरेंशिएशन तो नहीं मिलती है देखने में
या जी, क्योंकि ये भी होता है कि भाई ऑब्वियसली डिफरेंट पार्ट्स द वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं एक जगह पे यकजा होकर, तो समटाइम्स इट आल्सो क्रिएट्स सम काइंड ऑफ एक चल रहा होता है दिमाग में, ये पाकिस्तानी है, दैट्स इंडियन, दैट्स, तो ऐसा कुछ है वहाँ सिलसिला, इफ एनीबॉडी वांट्स टू कम ओवर देयर, या डिड यू फेस नहीं इट? नहीं, होपफुली ऐसा होना नहीं चाहिए। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट दे प्राइड देमसेल्व्स ऑन, एंड एटलीस्ट इन माय कंपनी मैंने ऐसा देखा नहीं। हाँ मतलब मैं थोड़ा सा हूँ चुलबुल, मुझे मजा आता है तंग करने में लोगों को, तो मैं खुद वो मजाक करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं तो तुम्हें हाथ लगाऊंगा, ठीक है, या यहाँ और पे ये ना लोग उस ना उस मुल्क में और आपको कंट्री में भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? नहीं नहीं मेरा नहीं, मतलब माशाल्लाह से इतना फील नहीं हो, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। जो कल्चरल डिफरेंस है ना, वो तो है, वो प्रेवलेंट है। अब जैसे रमदान अभी गुजरी है, वो हम्म, बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, बिकॉज यहाँ पे रोज़ा बहुत लंबा होता है। एक तो आई थिंक 18-19 घंटे का रोज़ा होता है यहाँ पे, तो वो आपकी हम्म, टाइमिंग भी खराब कर देता है। अब मेरा रोज़ा बंद होता था सुबह 3-3:30 बजे, 3-4 बजे, और हाँ, बंद होता है रात के 10 बजे, 9:30-10 बजे। अब हम्म, मैं जागूं सेहरी तक, क्योंकि जागना तो पड़ता था, अकेला हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी वालदा बैठी हुई है जो मुझे ऐसे उठाने, उठो सेहरी के लिए, नहीं, मुझे खुद उठना है, अलार्म से तो नहीं उठूंगा। तो मैं जागा रहता हम्म, था। रौनक भी लगी हुई होती थी, पाकिस्तान में सब जाग रहे होते हैं, दोस्त यहाँ जाग रहे थे, तो सबको मैसेज वैसेज करके बात गुफ्तगू होती रहती थी। तो जब सेहरी पे उठे, बंदा सेहरी करके सोए, फिर वापस 9 बजे ऑफिस के लिए उठ जाना है जल्दी जल्दी, तो काफ़ी हाँ, काफ़ी मर्तबा ये हुआ कि मैं लेट हो गया कभी मीटिंग के लिए। तो उनने मुझे काफ़ी वो समझे, उनने कहा हाँ रमदान चल रही है, हम समझ सकते हैं, मगर 3-4 बार बाद हुआ तो उनने बोला कि देखो हमें मसला नहीं है, मगर रमदान तुम्हारी है, रमदान हमारी हम्म, कंपनी की नहीं है और हमारी भी नहीं है। तो हम्म, इट्स योर पर्सनल लाइफ, तो हम चाह रहे हैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ के साथ अफेक्ट ना करे, तो ट्राई राइट, टू बी अ बिट मोर दे केयरफुल सपोर्टेड विद यू, इट। They या supported me, but they just clear cut said कि देखो पर्सनल एंड प्रोफेशनल में डिफरेंस होता है, जबकि पाकिस्तान में हमारा पर्सनल इज सो knitted into the professional, राइट? हमारे वहाँ पे हर चीज मिक्स है। रमजान है तो बस सबको पता है रमजान का सीजन ठंडा जाएगा, ऑफिस हाँ में जी, काम नहीं होगा। आपका ऊपर इन लोग ने नमाज रूम को नैप रूम बनाए थे कि आप जाके थोड़ा सो जाएं, केलुल्ला कर लें जोहर के बाद, क्योंकि रमजान है, रोजा लगा होगा आप लोग को। तो वो हम्म, कल्चरल इंटीग्रेशन यहाँ पे ऑब्वियसली मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इनके अपने कल्चर हैं, उनमें हमें इंटीग्रेट करना होता है। इनके बर्थडे गाने का डिफरेंस होता है इनके यहाँ पे। अच्छा, सबसे अच्छा जो मुझे कल्चर शॉक लगा था कि बर्थडे का बंदा खुद केक लेके आता है। अब ये अच्छा तो मेरे खुद लिए लेके, बहुत कंफ्यूजिंग था, बिकॉज मैं आया, मैंने कहा बर्थडे के दिन तो हम नाचते हैं कि हमारे लिए 4-5 केक आएंगे, लोग खाएंगे पियेंगे मजे करेंगे। यहाँ and we पे are कहते expecting that our that friend will bring the cake or वो बंदा लेके आएगा, तो ऐसा और नहीं, अगर नहीं आता तो हम लड़ते हैं, मतलब इट वाज लड़ते, माय बर्थडे, यू ये डिडंट गेट मी द केक, ये कोई या मजाक है, मैं तुम्हारे लिए क्या, तुमने मेरे लिए नहीं किया, मगर यहाँ पे खुद लेके आओ हाँ, अपना केक दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। अब खुद लेके आने के चक्कर में केक भी होता है सस्ता। तो तो आपको खाने का ढंग का केक भी नहीं मिलेगा। तो आपके केस में क्या हुआ है वैसे, आपकी जब बर्थडे गुजरी है, सो वर यू द वन who यस bought यस, the cake, डेफिनेटली so डेफिनेटली you had to do that even, yeah, डेफिनेटली ऑफिस में तो करना पड़ा, बिकॉज वहाँ तो सारे डच हैं, राइट, उनका हाँ कल्चर है जी, ये। मगर घर पे जैसे मेरे जो दोस्त थे वो मेरे लिए केक लेके आए थे, मेरे मैं दोस्त लाइटर नोट पे पूछ रहा था सवाल, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बहुत ज़रूरी होता है अभी, मैं अक्सर ये बात कह चुका हूँ कि भाई इंसान वो करे जिसमें जिसका वो इंटरेस्ट रखता है, जिसमें आपकी दिलचस्पी होती है, एंड आई थिंक यू सेलेक्टेड द फील्ड दैट यू वांटेड टू सेलेक्ट, and somehow you did it and you got successful in that, you studied and still you're doing your masters in what you want to do, आप उसी में कर रहे हैं जिसमें आप करना चाहते हैं। दूसरी बात, आप चाहते थे कि आप यहाँ से कराची से मूव हो, पाकिस्तान से मूव हो, एंड यू वेंट ओवर देयर, यू डिड व्हाट यू वांटेड टू डू। आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है ये कि आप वो काम करें जो आप करना चाहते हैं अपने दिल से, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि यार मुझे ये कहा जा रहा है पेरेंट्स की वजह से, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एक ऐसी यूथ भी देख रही है, ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। मैंने ये भी देखा है, भाई आप एमबीए क्यों कर रहे हो यार, अम्मी ने कहा है, तो थोड़ा सा ये भी होता है ना हमारे यहाँ, कि बस कह दिया तो हम कर रहे हैं, तो हमें इस ऐसा, मैं सबको नहीं कह रहा, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो इस चीज़ को यानी कि वो पढ़ भी रहे हैं बिल्कुल, और दिल से पढ़ रहे हैं, दिल से चीज़ें कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में कितनी ज़रूरी है ये चीज़? दरअसल अगेन मेरे साथ एग्जैक्टली वो हुआ है जो एग्जांपल आप दे रहे हैं बच्चों का, राइट। मेरा बाहर जाने का इरादा तो मेरा था, बट हायर एजुकेशन का इरादा मेरा नहीं था, इन द सेंस ऑफ मास्टर्स। अच्छा, मास्टर्स का सही, इरादा मेरे घर वालों की तरफ से ही था, मास्टर्स का इरादा मेरे दोस्तों की तरफ से था। उन्होंने बोला था मास्टर्स कर लो, जिंदगी में सेट हो जाओगे। जब मुझे यहाँ जॉब लगी थी मेरी, राइट, तो मैंने कहा था प्रॉब्लम सॉल्व। मैं यहाँ पे मास्टर्स करने आया ही इसलिए था क्योंकि मुझे यहाँ जॉब नहीं लगेगी,
राइट। तो जितने लोग मास्टर्स कर रहे थे ना यहाँ पे, जो पाकिस्तानी यहाँ पे मास्टर्स कर रहे थे, जो बैरूनी मुल्क से लोग आके मास्टर्स कर रहे थे, मुझे कह रहे थे तुम मास्टर्स क्यों कर रहे हो, तुम्हारी तो जॉब लग गई। मतलब जिस हाँ। तरह बंदा मास्टर्स करता है वो तो प्रॉब्लम सॉल्व, अब तुम क्यों कर रहे हो मास्टर्स। उन्होंने मगर कहा मेरे कोर वालिद, ऑब्जेक्टिव तो हो गया है कि आप जॉब कर लीजिए। हाँ। एग्जैक्टली हाँ, तो मगर मेरे वालिद साहब जो है ना, मेरे वालिद साहब ने पढ़ा नहीं है। तो मेरे वालिद साहब को जितनी अहमियत है ना पढ़ाई की, इतनी किसी को नहीं है। वो कहते हैं मैंने नहीं पढ़ा और मुझे पता है कि इसके नुकसानात क्या हैं, तो तुम लोग को अगर पढ़ना है, पीएचडी करनी है, करो, मैं सपोर्ट करूंगा, मुझे मसला नहीं है। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि अगर बाहर जा रहे हो, मौका मिल रहा है, तो मास्टर्स भी कर लो जिसमें तुम्हें शौक है, मसला नहीं है, बस एक डिग्री उठा लो। मेरे वालिद साहब को खाली डिग्री से वो है कि डिग्री आपके पास आए, क्योंकि डिग्री से होगा बंदा भूखा नहीं मरेगा कभी, वो कहीं ना कहीं जॉब कर लेगा अपनी डिग्री से। तो वो उसकी वजह से मेरी तरफ से, वो अब्बू की तरफ से, आई वोंट कॉल इट प्रेशर। दरअसल मसला सारा है कि हमने हर चीज़ को ना ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, राइट, कि एक मेरी चीज़ है, एक मेरे घर वालों की चीज़ है। मैंने आपको कभी समझाया कि मुझे बाहर जाना था और मैं किस तरीके से मेरे घर वालों ने उस चीज़ को सपोर्ट करके अपना फ़ायदा बना लिया, राइट। वो जो कोलैबोरेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे यहाँ पे नहीं है। आइदर मेरी है या मेरे वालिदैन की है, या मेरी है या मेरी बीवी की है, ऐसे ऐसे नहीं होता। होना चाहिए तो मिक्स मिक्स एंड मैच होना चाहिए, कोलैबोरेशन होनी चाहिए। तो मैंने जब यहाँ मास्टर स्टार्ट किया, मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया, मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स किया, और मैंने कहा पता है मज़ा भी आएगा, दोस्त भी बन जाएंगे ज़्यादा, और सही। मुझे सीखने का तो शौक है। मैं ऑनलाइन कोर्सेज वैसे ही लेता था, मतलब इवन बिफोर माई मास्टर्स बैक इन पाकिस्तान, जब मैंने 1.5 साल काम किया, मैंने यहाँ पे भी 6 महीने काम किया, मैं हर महीने एक ऑनलाइन कोर्स खत्म करता था यूडेमी से या कोर्सेरा से। मैं, बिकॉज मुझे सीखने का शौक है, पॉडकास्ट सुनता रहता था, तो मैंने कहा कि कुछ नया, हर वक्त कुछ नया सीखना चाहिए। उधर से ये फील्ड आई मेरे, जो बिजनेस इंटेलिजेंस में डेटा साइंस की फील्ड में जा रहा हूँ, ये मुझे एक्साइटिंग इसलिए लगी थी बिकॉज ये अगेन एक्चुअल साइंसेस की तरह ये नई ब्रेकिंग फील्ड थी। मुझे नई फील्ड्स का बहुत शौक होता है, और ऊपर से इसमें वही नंबर्स एंड कैलकुलेशंस एंड थ्योरी इतनी थी जो मुझे, वो राइट मिक्स जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। तो राइट। इस वजह से मैं उस फील्ड में चले गया। मगर अगेन ये मेरा पैशन पर से नहीं है। मेरा पैशन अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मेरा पैशन है कि मुझे शेफ बनना था बचपन से। मुझे यू वांट टू बचपन बी अ से शेफ। शेफ, जैसे मुझे बचपन से शेफ का शौक था। मुझे बचपन, अभी तक मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट नहीं तो ढाबा खोलना है। पाकिस्तान में नहीं, यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत ढाबा है तो यहाँ पे ढाबा खोलने का मुझे बहुत इरादा है, क्योंकि मुझे शौक था हमेशा से खाना खाने का, खाना बनाने का। तो वो मेरा पैशन है। मगर मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, मेरा ये स्ट्रिक्ट बिलीफ है कि आपकी जॉब आपका पैशन होना ज़रूरी नहीं है। आपकी जॉब एक मीन्स टू एन एंड है। वो 9 to 5 है, पैसे कमाने की चीज़ है। उसके बाद 5 से लेकर रात के 12 बजे तक आपके पास टाइम है अपने शौक पूरे करने का। आप कर सकते हो। अगर मैं ढाबा खोलूँ, 9 से 5 काम करूँगा, ढाबा चलेगा रात को 6 से 10। ढाबे के काम के बाद आना तो ढाबा जा सकता हूँ, मैं अपने ढाबे को देख सकता हूँ, ढाबा चल रहा है कि नहीं चल रहा, ढाबे में कोई मसला है कि नहीं है, वहाँ बैठ के दोस्तों के साथ शुगर लगा सकता हूँ जब तक मेरा ढाबा चल रहा है। फैमिली अगर आ जाती है तो आपको अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट करनी होती है, और उसका फ़ायदा इस मुल्क में ये है कि आप यहाँ पे पार्ट टाइम काम कर सकते हो। आप हफ्ते में 5 दिन की जगह 3 दिन काम कर सकते हो, 2 दिन काम कर सकते हो। तो आप वो 2 दिन काम करो, बाकी 2 दिन 3 दिन जो है आप अपने नॉर्मल ऑफिस के टाइम पे अपना अपना काम करो, जो आपका पैशन आपको बोल रहा है। जैसे मुझे अपना ढाबा चलाना है या मुझे अपना रेस्टोरेंट चलाना है, तो प्रोक्योरमेंट और सारी जो काम है वो मैं सारे सुबह कर लूंगा, और एंड में फिर भी मुझे मेरी फैमिली का टाइम मिल जाएगा। तो इट्स अबाउट गेटिंग दैट वंडरफुल बैलेंस इन लाइफ, राइट, दैट्स आज प्रीटी मैं एक बात आपकी बहुत इंडोर्स करना चाहूँगा, और मुझे ऐसा लगता है आपने सारी बातें बहुत काम की हैं अभी तक, शुरू से लेके आखिर तक। अभी आखिर तो नहीं, अभी हम वी आर इन द मिडिल ऑफ द कॉन्वर्सेशन। वट एवर यू सेड, आई टोटली अग्री विद यू, एवरीथिंग हैज बीन सो वंडरफुल। लेकिन कहते हैं ना कि पूरी बात का या पूरे कलाम का एक, हम कहते हैं आखिर में कि हासिल कलाम ये है। जब हम कोई शेर सुनाते हैं, कोई बात कहते हैं हासिल कलाम ये शय है। तो आपकी पूरी बात का मैं समझता हूँ जो हासिल है ना, वो मुझे बहुत बहुत क्लिक की वाली बात आपकी, कि आप लोग कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप वही काम करें जो आपने इंटरेस्ट की बात की ना, कि जिसमें इंटरेस्ट हो वही काम करो, ठीक है, वेल एंड गुड है, दैट शुड बी द थॉट। लेकिन बात ये कि यू हैव टू अर्न टू। कुछ ऐसी भी चीजें हैं, यू हैव सम इंटरेस्ट इन विच यू मे नॉट बी एबल टू अर्न। सो व्हेन यू आर नॉट अर्निंग, यू आर नॉट ईटिंग, यू आर नॉट आप खा नहीं रहे, फिर आपको भूख भी लग रही है, आपने खाना भी है, और दूसरी बात आपने अपना इंटरेस्ट भी पूरा करना है। तो आपकी ये बात वेल एंड बिल्कुल सही है कि भाई आप 9 to 5 वो काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपको वही काम मिले जिसमें आपका इंटरेस्ट है। लेकिन 9 to 5 आपके पास जो जॉब है, आप उसको दिल से कीजिए, और उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेल सेड, ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक बात है कि आप अपने पैशन को, मेरा, क्योंकि मैं मेरे इन माय क्लोज अक्विंटेंसेस मैं आपको बताऊं कि मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो हु हैव बीन स्टडिंग, जो पढ़ते भी रहे, काम भी उन्होंने किया। एक मेरा एक दोस्त है, ही इज़ अ बैंकर, और
अकॉर्डिंग टू हिम ही इज अ वेरी बैड बैंकर अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट रियली इंटरेस्टेड, बट लेकिन क्या कि काम तो करना है, जॉब तो करनी है, ही इज डूइंग दैट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज आरजे, वो आरजे भी है, वो रेडियो पे भी जाता है, वो अपना शो भी करता है। तो ये बिल्कुल सही बात बताई आपने, आई रियली लाइक एग्जैक्टली इट, अप्रिशिएटेड इट, एग्जैक्टली या एग्जैक्टली एंड एवरीथिंग। फंकारी बात ये है कि सॉरी फंकारी बात नहीं, मतलब ज़रूरी बात ये है कि फंकारी शौक होते हैं हमारे मेनली। अगर आप किसी बंदे से पूछे ना कि आपका पैशन क्या है, तो कोई ये नहीं बोलेगा मुझे है ना सीईओ किसी कंपनी का बनना है या मुझे ये करना है। कोई बोलेगा मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, चलो ठीक है, दैट्स वेल एंड गुड। मगर हमेशा आरजे बनना है, एक्टर बनना है, शेफ बनना है। आपको ऐसे ही शौक होते हैं जो आपको 9 to 5 की जरूरत ही नहीं है। आरजे क्या होता है? 9 to 5। आरजे सुबह 7 से 8 का मॉर्निंग शो करता है। 7 से 8 का मॉर्निंग शो करो और चले जाओ अपने ऑफिस अगर आपको जाना है। लेट अगर नाइट शो भी करते हैं। आप एग्जैक्टली राइट, इवनिंग शो करो या लेट नाइट शो करो। शेफ हो आप, पाकिस्तान में कौन दोपहर सुबह के 9 से लेकर 5 बजे के बीच में खाना खाने आता है आपके पास? रेस्टोरेंट्स कहाँ चलते हैं? मेनली लंच टाइम पे चलते हैं, वरना डिनर टाइम पे चलते हैं। तो आप कुछ भी एक्टर बनना है तो आपके शूटिंग स्केड्यूल्स होते हैं। आप किसी भी तरीके से अपने पैशन को हमेशा इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये वेल आहद एंड ऑन गुड अगर रिकॉर्ड और आप। सवाल कर रहा हूँ, कुछ ट्राई किया अभी तक बना के कुछ, या मैं खाने में नहीं, या माशाल्लाह से आई कुक एवरी अदर डे एंड आई अभी मैंने रिसेंटली निहारी बनाई थी। यहाँ पे अच्छा। मुझे पाकिस्तान की निहारी का बहुत मूड हो रहा था, तो मैंने यहाँ निहारी बनाई। अच्छा, ये भी एक बहुत जरूरी है ना कि आप तो वहाँ रह रहे हैं, यू लिविंग ओवर देयर, सो यू हैव टू कुक, यू हैव टू नो कि भाई मुझे डेफिनेटली वो स्किल्स, और डेफिनेटली अब तो इम्प्रूव हो गए होंगे काफी। yes माशाल्लाह से I always had the passion when I was young कि मैं पाकिस्तान में बनाता रहता था। टर्की जब मैं गया तो उधर मुझे ज़्यादा शौक चढ़ा, क्योंकि टर्की में मेरे चंद दोस्त थे मेरे साथ। मेरा दोस्त वकास था, एक मैं था, या फिर मेरा एक और दोस्त था मनमोहन। हमें खाना बनाने का रिलेटिवली बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि राइट। ऑडियंस भी थी। अब शेफ है ना, एक परफॉर्मर की तरह होता है। हम्म। चाहे कोई भी बंदा बोले, परफॉर्मर की तरह होता है वो। अपना अच्छा सा खाना बना के खुद नहीं खा सकता, उसको इतना मजा नहीं आएगा जितना वो खाना बना के लोगों को खिलाएगा। जैसे एक परफॉर्मर होता है ना, वो परफॉर्म करता है दूसरों के लिए। अपने आप के साथ तो आपको पता है आप कितने अच्छे परफॉर्मर हो ना, आपको क्या खुशी मिलेगी? आपको या परफॉर्म करने में मजा आता है। तो उसे टर्की में हमें बहुत मजा आता था, हमारी स्किल भी उधर इंप्रूव हुई, क्योंकि मैं और वकास हेल्दीली एक दूसरे को सपोर्ट करते थे कि यार तुम ये खाना बनाओ, व्हाइट कढ़ाई तुम्हारी, बटर चिकन मेरी, घर पे 10 लोगों को बुलाते हैं, आज दावत रखते हैं। तो वो चीज़ जो है ना हमने बहुत की, और मैंने वो यहाँ पे वो हमारा कल्चर मैंने यहाँ कंटिन्यू रखा है। मेरे दोस्त आते हैं, मैं बटर चिकन बनाऊंगा, या मेरे कोई दोस्त है तो मैं निहारी बनाई। और मैं भी अपना कल्चर, अभी मैं डिफरेंट मुल्कों वाले लोगों को भी लाना चाह रहा हूँ घर पे। वो जो यूनिवर्सिटी में दोस्त बन रहे हैं, उनको मैंने बोला है कभी मेरे घर आओ, मैं तुम लोगों को पाकिस्तानी खाना खिलाता हूँ। ये ये सारी चीज़ें जो है ना या आपको, वेरी ट्रू। दे मेक यू बेटर इफ यू राइट। जस्ट कीप लर्निंग। Ahad, what would you suggest to the people out there who want to who really want to come to these countries, who really want to go, और वो भी जो है वो एजुकेशन को, या कोई देखें, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हो सकता है कोई मास्टर्स करना चाहता हो, कोई ग्रेजुएशन करना चाहता हो, तो क्या रूट अडॉप्ट करें थ्रू विच दे कैन गेट सक्सेस इन देयर ड्रीम्स? I personally think exposure at a young age is very very important. हम्म। आप अगर आपको पाकिस्तान आपको बहुत पसंद है, दैट्स ऑल गुड एंड वेल, मगर अगर आप अपनी यंग एज में जाएंगे ना बैचलर्स करने या मास्टर्स करने, हम्म। तो बाद अगर आप पाकिस्तान वापस आएंगे ना, यू विल ब्रिंगिंग इन अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। हम्म। yes it will be very difficult to adjust to the Pakistani life, and आप किसी कंपनी में लगते हैं तो वो आपको वो हथौड़ा मार मार के अपने जैसे ही बना देते हैं। बट हम्म। दैट थिंकिंग दैट यू डेवलप, उस पर जितना भी हथौड़ा मार लो वो जाएगी नहीं, बिकॉज वो इट्स इंग्रेन्ड इन यू, बिकॉज यू टुक 4 or 2 years to develop that thinking. एंड बाय दैट टाइम आप अपनी जॉब या फील्ड में कहीं लीडरशिप पोजीशन में पहुंच जाएंगे 2 साल में, कि आप वो अपनी थिंकिंग अडॉप्ट करा सके। अब जैसे मैं पाकिस्तान में जब मैं आईसीआई में काम करता था, तो वहाँ हम्म। पे मैंने फ्लेक्सिबल वर्किंग का कॉन्सेप्ट ला रहा था। बहुत हम्म। डिफिकल्ट था, ऑफिस में कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, मगर मेरा बॉस जो है वो रिलेटिवली यंग था। राइट। वो रिलेटिवली यंग था, तो ही अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। सो वी केम अप विद आवर ओन स्केड्यूल कि मैं घर से काम करूंगा इस वक्त, मगर मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, एंड देन आई विल सपोर्ट यू इन द ऑफिस लेट एट नाइट एज वेल, बट मुझे मेरे पर्क्स चाहिए, मुझे घर से काम करना है। मेरे बॉस ने बोला डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। तो वो अपने बॉस से जाके बोलता था कि मैं संभाल रहा हूँ अपनी टीम, जैसे भी मैं संभाल रहा हूँ। उसके बॉस बोलता था कि नहीं, मगर ये लड़का मुझे नजर नहीं आ रहा, तो आई फील लाइक ही इज नॉट वर्किंग। वो कहता है आपको मुझे भरोसा होना चाहिए ना, आई एम टेलिंग यू ही इज वर्किंग। तो दैट चेंज इट कम्स फ्रॉम टॉप बॉटम, इट आल्सो कम्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो हमने ट्राई किया, फिर हमने फ्लेक्सिबल वर्किंग एक प्रोजेक्ट बनाया, और हमने अपनी पूरी थ्रू आउट द जी। ऑफिस हमने इसको लॉन्च किया, पिच किया, एक्सेप्ट भी हो गया। मगर फिर मेरा टाइम खत्म हो गया था वहां पर, मुझे यहाँ आना पड़ा तो मैं कभी वो प्रोजेक्ट को लीड नहीं कर पाया। बट द पॉइंट इज यू कैन ऑलवेज ब्रिंग चेंज इफ यू आर रियली गेयर्ड टुवर्ड्स ब्रिंगिंग चेंज। अगर आप बस बोल रहे हैं कि यार मेरा कुछ नहीं जा रहा, खैर है, तो देन दैट्स अप टू यू। Ahad, how do you see this pandemic
थ्रू द आइज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ वे लाइक कि क्या आप कहेंगे कि इस वक्त आपको पता है पूरे अक्रॉस द ग्लोब क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है, तो वो कैसे अपने आप को ग्रूम करें, क्योंकि मैं आप बल्कि ये भी चाहूँगा कि आप ये भी बताएं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे अभी आपने बात की कि आपने इतने कोर्सेज किए, मेरे ख्याल है आपने कोई इंटरेस्टिंग कोर्सेज भी किए और आपने आपको बड़ा अच्छा आपका एक्सपीरियंस था वो, तो इस पे ज़रा बताएं स्टूडेंट्स को, लोगों को कि पेंडेमिक क्योंकि हालात ऐसे हैं, तो इसमें आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ दें या आपने अपनी ग्रूमिंग बिल्कुल ख़त्म कर ली है, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट तो कर लिया है, लेकिन आपने ऐसी आइसोलेशन भी ले ली है कि जिसमें आपको सीख ही नहीं रहे, आप बोले अब तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, हाथ पे हाथ रख के तो कोई इंसान नहीं बैठ सकता है, इवन दो इफ द सिचुएशन इज वर्स. What would you like to recommend to the students out there listening to you right आई now? थिंक डेफिनेटली आपने बिल्कुल बात बिल्कुल सही की है कि आप कुछ करें, बट टू बी ऑनेस्ट वी समटाइम्स वी डोंट नो, राइट? हर बंदे का कोप करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो अब जैसे खुदा ना खास्ता हम में से किसी के खानदान में किसी को अगर कोरोना हुआ है, तो उस वक्त हम ये नहीं सोचेंगे कि यार हमें कुछ बेहतर करना है। उस वक्त हम सिर्फ कोप कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे, यार कुछ बच जाए, किसी हम किसी को किसी तरीके से बचा हाँ. लें। या फिर हमारे यहाँ पे कोई बंदा हो जो बहुत पार्टी वाला बंदा हो, जैसे मतलब उसको लोगों से बात करने का शौक है, उसको बाहर जाने का शौक है, उसको एकदम से आप घर में बंद कर दोगे ना वो भी बेचारा पैनिक कर जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, हाँ. खुदा ना खासा डिप्रेशन में ना चले जाए, बिकॉज उनके लिए जी. इतना बड़ा कल्चर शॉक होता है। तो फर्स्ट थिंग आई हम्म. वुड रेकमेंड टू पीपल इज यू टेक योर टाइम टू एडजस्ट योरसेल्फ। और वो टाइम Yeah. काफी मिल गया, आई थिंक इट्स बीन 2.5 months, राइट? तो आप टाइम ले एडजस्ट करें एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग हेल्दी हैबिट्स। मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूंगा सबको, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स हम्म. क्लियर। वो बंदा की पूरी जिंदगी उसने सिर्फ हैबिट्स पे बात की, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ आई थिंक फॉर 4-5 years। वो सिर्फ बात करता है कि जिंदगी में only one thing matters and that's consistency। हम्म. बस हर सुबह उठ के आप अगर एक ही चीज करेंगे ना, तो आप बेहतर हो जाएंगे, नो डाउट। कुछ भी कर लें। तो मैं यही चीज अपनाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऑनलाइन कोर्सेज करता हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, इट डजंट नीड टू बी समथिंग रिलेटेड टू माय फील्ड। मैं टेब्लो एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, मैं उसके बारे में एक कोर्स करता हूँ, तो अगला कोर्स में फिलोसफी पे उठाता हूँ, फिर उसका जी. अगला कोर्स मैं साइकोलॉजी पे उठाता हूँ, फिर मैं उसका अगला कोर्स फाइनेंशियल मार्केट्स पे उठाता हूँ। मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा कोर्स हो जो मुझे सिखाए कुछ नया। मतलब आप कोशिश ये करते हैं कि हर आपका पिछला दिन जो है ना वो आज के दिन से बेहतर हो. यस, आप कुछ नया कर, यस, आई थिंक दैट्स अ वेरी वंडरफुल वे टू पुट इट। यू ट्राई टू बीट योर यस्टरडे सेल्फ, कि कल से बेहतर मैं अगर आज हो जाऊं, तो आप हम्म. सोचें एक साल में आप कितना बेहतर हो जाएंगे। एंड दोज आर सपोज टू बी लिटिल विक्ट्रीज, कि आज मैंने कढ़ाई की जगह पे सैलड खा लिया ये भी आपकी आपका जिस्म आपको 10 साल बाद शुक्र करेगा कि आपने इतना सैलड खाया उसके लिए सो दीस काइंड ऑफ थिंग्स रियली डू मैटर। सही कह रहे हैं आप कि आप अच्छी हैबिट्स लेके आए हैं, आप बुक्स पढ़ लें, आप जो है कोर्सेज ऑनलाइन करें, और आपकी जो मजीद इम्प्रूवमेंट आप अपने अंदर लेके आ सकते हैं, क्योंकि अब तो टाइम भी मिला हुआ है आपको, यू हैव टाइम. एग्जैक्टली, हम पहले एग्जैक्टली। हमारे पास, हम मैं तो ये कहता हूँ हमेशा से कि टाइम इज ओवर रेटेड, टाइम इज समथिंग व्हिच इज ओवर रेटेड. मतलब एवरीबडी सेज आई डोंट हैव टाइम, इवन दो ही इज फाउंड डूइंग एवरीथिंग. मतलब ही हैज झूठ टाइम फॉर इंस्टाग्राम, फॉर फेसबुक, फॉर झूठ है। स्टेटस, एवरीथिंग. आजकल आई मैं देख रहा हूँ आज इतना एक ट्रेंड बना हुआ है. ट्रेंड्स आर गुड, ओके, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि वो अभी कोई ट्रेंड कुछ चला कुछ व्हाट्सएप पे और वो वीडियोस बन रही, तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कितनी एफर्ट डाली जाती है ना. मतलब यू हैव टू पुट द कैमरा, यू हैव टू डू, आई एम नॉट हियर डिमोटिवेटिंग एनीवन, ठीक है, जिसको करना है करे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके साथ हेल्दी एक्टिविटीज को ना छोड़ें. जब मुझे फिर कोई ये कहता है ना कि यार मुझे पढ़ाई का टाइम नहीं मिला, या मुझे किताब का टाइम नहीं मिला, या मुझे जिम जाने का टाइम नहीं मिला, या मुझे एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिला, या आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड, आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, तो दैट इज व्हाट इज समथिंग वेरी डिवास्टेटिंग फॉर मी टू हियर. मैं बोलता है अच्छा, लेकिन वो तो था, मैंने तो स्टेटस पे ये देखा था कि आप इतनी एक एफर्ट डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो यूटिलाइज करें. आप अच्छी हैबिट्स लेके आए डेफिनेटली, जो आपने बात कही. Ahad, डेफिनेटली। any message you would like to give at last to the people who are listening to you, और क्या कहेंगे आप? नहीं, बस आई थिंक यू पुट इट वंडरफुली। सबसे पहले आप कोशिश करें टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बिकॉज द हम्म. ओनली बार यू शुड सेट विथ, इट शुड बी विथ योरसेल्फ। आप हम्म. दूसरों को ना देखें, आप किसी और को ना, आप कोई टोपी ना कराएं। हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन विथ योरसेल्फ कि यार देखो मैं किधर हूँ, क्या मैं खुश हूँ? और अगर आप खुश हैं तो चलते रहें, अगर आप खुश नहीं हैं अपने आप से, तो देखें कि आप अपने को बेहतर कैसे कर सकते हैं। बिकॉज जिंदगी इज नॉट सपोज टू बी स्ट्रेट, राइट? इट्स सपोज टू बी इंक्लाइन एंड अ डिक्लाइन। मसला नहीं है अगर आप नीचे जा रहे हैं, एज लॉन्ग हम्म. एज आप वापस ऊपर आ रहे हैं, एंड दैट्स फाइन। बट बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। हमारे यहाँ आधे ज्यादा लोग जो है ना, वो फोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गुफ्तगू सब करने से अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करें, ताकि वो अकेले अपने थॉट्स के साथ ना बैठ सके। एंड दैट इज समथिंग आई vehemently oppose, because आपने बहुत अपने आप से कंफर्टेबल सही होना बात. जरूरी है बिफोर आप किसी और के साथ कंफर्टेबल हो सके।
टोटली अग्रीड, आपने बिल्कुल सही कहा कि खुद से गुफ्तगू जो है जब वो छिड़ जाती है तो फिर पता नहीं लगता कि अंदर क्या चल रहा है। तो एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसी बात है, और मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बिल्कुल आते हैं तमाम सुनने वालों, लेकिन आपने कहते हैं ना कि हर हर ज़वाल के बाद जो है वो उरूज ज़रूर होता है, और बिल्कुल हर रात के बाद दिन ज़रूर होता है। तो उसकी तरफ मुतवज्जो रहिए, और उम्मीदों का आपका जो चराग है वो जलते रहना चाहिए। अहद, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। यू आर अ वेरी, आई मस्ट से कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा है आपके साथ। वेरी टॉकेटिव आप, और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बताया नहीं है, आपने दिखाया है। ये भी एक आर्ट होता है कि थैंक यू इंसान सो जब मच बात फॉर करता है हैविंग मी। तो कहते हैं कि वो इंसान जब बात कर रहा होता है ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अपनी, उनकी एक मंजर कशी होती है कहानी की, वो दिखा रहे होते हैं। तो मैं टर्की भी गया आपके साथ, आई वेंट टू टर्की, आई 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 वेंट टू योर, वो जो आपने नहारी बनाई, और डिफरेंट जगहों पे आप मुझे ट्रैवल करके लेके गए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी। Thank you so much. Thank you so much for having me. It was a wonderful opportunity, and I think I might just take this time to tell you that it's a wonderful initiative that you have. I think you're on episode 12 already, and it's a wonderful opportunity for people to just learn के हो क्या रहा है, and I think you should just keep this going. I'm also trying to do this myself, so hopefully कभी आप मेरे podcast पे आइएगा ताकि मैं आपका भी इंटरव्यू ले सकूं. जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू, हाँ थैंक यू, टेक केयर। Thank you so much for your time. Thank you. आप सबका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.